Officially, the batch will start in March after finishing the board exams. Sir, you didn't send the link in the evening. Yeah, you're right. सर साकेत नगर वाली ब्रांच का आप अभी नहीं जा रहे हो क्या वहाँ? I'm going there. I go there, but right now, officially, I have not started the batch because, Hello, Sohan sir. you Good know, evening. we need to, like in offline mode, first of all, the things, if it will be first time that I'll be running that thing. I'll be running the branch and more than offline, like in offline mode, things will go like I need to maintain the consistency and go for that. I have given the time, but slowly students will start coming, and I have got some inquiries as well. But I thought that new batch, I will start the new batch in March after when the MP board exams finishes, because I have got most of the inquiries from that. So yes, I will start the offline batch. Right now, I'm not taking offline batches. I go there night officially. I don't take, but sometimes I give the demo. I provide it. ओके So let's get started. We are discussing uh third format today. If you guys remember, सर वन so मिनट सर 1 मिनट सर मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया था वो बना के सेंटेंस yeah, I will let you know. I have checked it. I will share the PDF. ओके ओके And so in the starting, when we started this batch, we discussed that in this batch we will learn 4 formats, and those 4 formats will cover everything. It will cover basic, advanced, everything, and we need to learn the things. We need to learn different situations, as well as we need to learn how to talk on that. Sir, 2 formats we have discussed. Yes, Aditya sir, you want to say something? yes, sir. 2 days before, sir, I create video and send into this group, sir. Nice. Very nice. And keep doing. Just a lot of people have lost the consistency. I've seen it. It's been 2 days, 3 days, they have not recorded the video, and simply I don't want to say anything, but there's yes one thing. We are making excuses, we are procrastinating the work. I will surely come to that topic. I will talk about that, but right now let's learn something. I will discuss. There was a task of the video recording which people have not done, and they have not done the work what they have been told to do. So, but first of all, we'll learn something. So in the starting, I said that I taught we will discuss 4 formats. 2 formats we have discussed. The first format was where doer is there and he does the work himself. And then there's a second format where doer doesn't do the work himself. He gets the work done. He makes somebody do the work, or he lets somebody do the work. Today we are conversing third format. Today we are conversing third format. If you guys remember, the third format was doer. Like third format, the name of third format is without doer. The name of third format is without doer, means किसी काम को किया जा रहा है. In third format, we only tell that we don't mention who is the doer or what is the doer. We directly talk about the work or thing's name. But before that, first of all, I'll try to make you understand something. Everybody should pay attention and listen to me carefully. I will try to keep the things easy and then make you understand. First of all, you guys try to understand that without doer is very hard to speak in spoken English, because a lot of students they are not able to speak it. First of all, they are not able to understand that where do we use it. Most of the time a student uses only first format and sometimes second format, rarely second format. But second format, and especially this third format, is very important and very advanced. If you if you speak these things, if you speak that one rule, if you speak third format in spoken,
it will really show that yes, you have got something and you have really understood and learned something, because this one rule is not for kids. You really need to learn and understand the things, and that is a rule I'm going to teach today. As I said, I will try to keep the thing simple. I will not teach the way you have been taught in schools. I will teach in my way, and I will teach with my like with my own style and try to make you understand. So first thing, पहली बात हम सभी को पता है कि एक जो सेंटेंस होता है वो स्टार्ट होता है इंग्लिश में डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। हमने इन 3 शब्दों से ज़्यादा बातें नहीं की हैं। हमने ये बात किया है कि ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 वर्ड्स को सही सीक्वेंस में लाना है और बोलना है। आप सभी देखो, अभी तक आप सभी ये समझ गए होंगे कि मात्र जितने आसान ये 3 शब्द दिख रहे हैं उतने आसानी से बोलते नहीं है, जो कि प्रीवियसली लास्ट वाली कॉन्वर्सेशन में भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि सुनने में बहुत आसान लगता है कि मात्र 3 शब्द डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन बोलना है, डूअर लेना है, टाइम वर्ड लेना है, एक्शन। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको 2 से 3 कॉन्वर्सेशन जो प्रीवियस जो हमारी हुई हैं लास्ट टाइम, उससे आपको ये समझ में आ गया है कि जितना आसान ये दिखता है उतना आसान ये होता नहीं है, क्योंकि नहीं बोलता, जुबान पे नहीं आता। अलग अलग रूल्स हैं, विल है, डिड है, वॉज, वर, हैड बीन, हैड, और सारी चीजें जुबान पे नहीं आती, सही तरीके से नहीं बोलती। इसका अंदाजा आपको लग गया है, तो हम इसको हल्के में नहीं लेंगे, अच्छे से आराम से समझेंगे। ये पहली चीज है कि जब आप आंसर देते हैं तो आपको चाहिए डूअर, टाइम और एक्शन। और एक्शन के बाद आता है थिंग्स नेम, है ना। अब थोड़ा थोड़ा आगे भी 1-2 चीजों पे बात करेंगे। तो इतना पता है डूअर, टाइम और एक्शन। एक्शन के बाद आता है थिंग्स नेम। थिंग्स नेम मीन्स जिस चीज के ऊपर काम होता है हम उसे थिंग्स नेम का नाम दे देंगे। ग्रामर में इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, हम यहाँ थिंग्स नेम बोल देंगे। ग्रामर में यही सीक्वेंस को डूअर को सब्जेक्ट लिखा जाएगा, टाइम वर्ड को हेल्पिंग वर्ब, एक्शन को मेन वर्ब, थिंग्स नेम को ऑब्जेक्ट। बट मैंने थोड़ा सा दूसरे शब्दों में लिखने की कोशिश की है। डूअर इज द पर्सन ऑफ द थिंग वी टॉक अबाउट, टाइम वर्ड इज द वर्ड विच टेल्स यू द टाइम एंड स्टेटस ऑफ द वर्क, action is that means what work we are talking about, and things name on what thing work is being done. Okay, things name means जिस चीज के ऊपर काम होता है उसे हम लोग things name कहते हैं। जिस चीज के ऊपर काम होता है उसे हम लोग things name कहते हैं। ओके, जिस चीज के ऊपर काम होता है उसे हम लोग things name कहते हैं। ओके, तो ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये जो फॉर्मेट हमने पढ़ा है, ये जो फॉर्मेट हमने डिस्कस किया है डूअर, टाइम और एक्शन वाला, ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से काम करता है कि जो डूअर है वो इस समय पर ये काम करता है और इस पे काम होता है ना, डूअर, है ना। डूअर, ये जो डूअर है, मैं हाईलाइट कर, ये जो डूअर है वो इस समय पे काम करता है, इस समय पे काम करता है, और ये काम करता है, और इस चीज पे काम होता है। इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। डूअर काम करता है, टाइमर बताता है किस समय पे काम हो रहा है, एक्शन से पता चलता है क्या काम हो रहा है, और थिंग्स ने मतलब किस चीज के ऊपर काम हो रहा है। डूअर मीन्स वो इंसान या वो चीज जो काम करता है, टाइम वर्ड मीन्स जो टाइम बताया और स्टेटस ऑफ द वर्क बताया, एक्शन मीन्स कि क्या काम हो रहा है, और थिंग्स मीन्स किस चीज के ऊपर काम हो रहा है। एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग टी। ओके, आई एम मेकिंग टी। तो आई हो गया डूअर जो कि काम कर रहा है, एम हो गया हमारा टाइम वर्ड जो कि हमें टाइम बता रहा है, टाइम प्रेजेंट का है ना, वर्क इज गोइंग ऑन की बात कर रहा है। मेक हो गया एक्शन, और टी हो गया थिंग्स नेम, चाय पे काम हो रहा है, ये हो गया हमारा थिंग्स नेम। ओके, तो अब हम लोग 4 चीजों पे बात कर रहे हैं। अब हमारा डूअर, टाइम और एक्शन के अलावा एक और चीज आ गया, थिंग्स नेम। आई डूअर, एम टाइम वर्ड, मेकिंग एक्शन, और टी हो गया थिंग्स नेम। आई एम मेकिंग टी। ओके, आई एम मेकिंग टी। एक और एग्जांपल देता हूं, है ना। आज हम लोग थिंग्स नेम पे फोकस करना, आप लोग थिंग्स नेम पे। आज की क्लास जो हमारा विदाउट डूअर है वो थिंग्स नेम के ऊपर बहुत ज्यादा है, वो थिंग्स नेम के ही ऊपर है सारा। तो थिंग्स नेम पे Hello, sir. फोकस करना। यस मैम। Can you explain again? I joined late. ओके,
सी देयर इज है ना, हमारा हमने अभी तक इस क्लास के पहले तक बात की है कि आंसर देने का सीक्वेंस होता है डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन। ओके, डूअर मीन्स कोई भी इंसान या कोई भी चीज जो काम करता है वो डूअर। टाइम वर्ड मीन्स किस टाइम पे काम हो रहा है, जो टाइम बताए और स्टेटस ऑफ द वर्क बताए। एक्शन मीन्स क्या काम हो रहा है, और एक्शन के बाद एक शब्द आता है थिंग्स ने, मीन्स किस चीज के ऊपर काम हो रहा है। थिंग्स ने मीन किस चीज, और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलता है। डूअर इस समय पर ये काम करता है और इसके ऊपर काम होता है ना डूअर, है ना डूअर, डूअर काम करता है, टाइम वर्ड टाइम बताता है, और एक्शन ये काम होता है और इस चीज पे काम होता है थिंग्स ने। तो थिंग्स ने मीन्स जिस चीज के ऊपर काम होता है। मैंने कहा आई एम मेकिंग टी, ये जो सेंटेंस है ये फर्स्ट फॉर्मेट का सेंटेंस है। आई हो गया डूअर, एम हो गया हमारा टाइम वर्ड, मेकिंग हो गया एक्शन, और टी हो गया थिंग्स नेम जिसके ऊपर काम हो रहा है टी, थिंग्स नेम हमारा टी। तो ये रहा सेंटेंस, बस इतना ही बताया कि चार चीजें हैं, डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, और एक्शन के बाद जो चीज आएगी जिसके ऊपर काम होगा वो है थिंग्स नेम। ये है ना। और एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा माय ब्रदर, ब्रदर इज वॉशिंग, ध्यान से समझ से लेना, वॉशिंग द क्लोथ्स। माय ब्रदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स, मेरा भाई कपड़े धो रहा है। ओके, माय ब्रदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स। अब यहाँ पे माय ब्रदर है डूअर, मेरा भाई है डूअर, इज है टाइम वर्ड, वॉशिंग हमारा एक्शन का फॉर्म है, और द क्लोथ्स है हमारा थिंग्स नेम, हम इसको थिंग्स नेम कहेंगे। एक्शन के बाद वाले शब्द को कह रहे हैं हम लोग थिंग्स नेम, जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं थिंग्स नेम। सो द क्लोथ्स है थिंग्स नेम, है ना। कपड़ों के ऊपर काम हो रहा है, कपड़े के ऊपर धुलने का काम हो रहा है ना, कपड़ों के ऊपर धोए जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे है ये द क्लोज से थिंग्स नेम। एक और एग्जांपल देता हूँ, मेन फोकस हमारा थिंग्स नेम पे ही है ना। मैं आपको पहले थिंग्स नेम ही समझाना चाहता हूँ, उसके बाद अपन आएंगे विदाउट डूअर के। जैसा मैंने कहा था कि पहले प्रॉब्लम की बात होगी, दो तरीके का टीचिंग मेथड, पहले प्रॉब्लम देखेंगे उसके बाद सॉल्यूशन पे आते हैं। अब मैंने कहा सर इज चेकिंग द, सर इज चेकिंग द नोटबुक। अगेन हमारा सर, सर हो गया डूअर, इज हो गया टाइम वर्ड, चेकिंग हो गया एक्शन की फॉर्म, और यहाँ पे द नोटबुक हमारा आ गया एक्शन, सॉरी थिंग्स नेम, द नोटबुक हमारा आ गया थिंग्स नेम। क्योंकि भाई नोटबुक के ऊपर काम हो रहा है, नोटबुक के ऊपर चेक किए जाने का काम हो रहा है, चेक हो रहा है ना, चेक करने का काम हो रहा है, तो नोटबुक हो गया थिंग्स नेम। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जहां पे थिंग्स नेम है हमारा, मीन्स डूअर है, टाइम वर्ड है, एक्शन, थिंग्स नेम। इतना, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो वो पहले पूछ ले, क्या आपको समझ में आ रहा है थिंग्स नेम क्या होता है। अच्छा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप लोग बताना वहां थिंग्स नेम है या नहीं। मैंने कहा सर, मैंने कहा आई एम मेकिंग, बताइए ये जो सेंटेंस मैंने लिखा नो है सर, आई एम मेकिंग, क्या इसमें थिंग्स नेम आपको दिख रहा है, नो आई एम सर, मेकिंग में सर। थिंग्स नेम दिख रहा नो सर। है ना। बस मैं यही समझाना चाहता हूं कि देखो, एक्शन के बाद जो चीज आती है जिसके ऊपर काम होता है वो होता है थिंग्स नेम। और देखो जब मैं आई एम मेकिंग कहता हूं, आई एम मेकिंग कहता हूं तो यहाँ थिंग्स नेम नहीं है, नो थिंग्स नेम, यहाँ थिंग्स नेम नहीं है। ओके, ठीक है, तो इतना है थिंग्स नेम। अब इतना हमने समझ लिया कि थिंग्स नेम क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, याद रहे जो विदाउट डूअर वाला सेंटेंस बोलता है, जो विदाउट डूअर बनता है, आप विदाउट डूअर उन सेंटेंसेस का ही बना सकते हैं जिसमें थिंग्स नेम हो। आप विदाउट डूअर उन सेंटेंसेस का बना सकते हैं जिसमें थिंग्स नेम हो, अदरवाइज आप विदाउट डूअर नहीं बना सकते। ध्यान से सुनते रहना, बहुत एडवांस रूल है, न्यूज़पेपर या बुक बुक पढ़ते हो तो यही ज्यादा लिखा जाता है, यही ज्यादा बोल जाता है, लिखावट में ज्यादा यूज होता है ना। जिस सेंटेंस में थिंग्स नेम होता है उन्हीं का विदाउट डूअर बन सकता है, उन्हीं का विदाउट डूअर बन सकता है। पेसिव वॉइस कहते हैं इसको ग्रामर में, उसी का पेसिव वॉइस बन सकता है। मैं लिख देता हूँ एक बार विदाउट डूअर, मैं यहाँ पे क्योंकि मैं विदाउट डूअर ही लेके चल रहा हूँ भाई, विदाउट डूअर, विदाउट डूअर। जिस सेंटेंस में थिंग्स नेम होगा उसी का विदाउट डूअर बनेगा, इसका विदाउट डूअर नहीं बनेगा, नो। है ना, इसका नहीं बना सकते, है ना, इसका नहीं बना सकते, है ना। जिस जिस सेंटेंस के एंडिंग में थिंग्स नेम होता है उसी का विदाउट डूअर बनाया जा सकता है, अदरवाइज आप विदाउट डूअर नहीं बना सकते।
जिस तरीके से आई एम मेकिंग टी है, इसका विदाउट डूअर बन जाएगा। माई ब्रदर इज वॉशिंग द क्लोथ, इसका विदाउट डूअर बन जाएगा। सर इज चेकिंग द नोटबुक, इसका विदाउट डूअर बन जाएगा। आई एम मेकिंग इसका विदाउट डूअर नहीं बनेगा क्योंकि थिंग्स नेम नहीं है। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, मैंने आपको ये समझाया कि जिस सेंटेंस में थिंग्स नेम नहीं होता उसका विदाउट डूअर नहीं बन सकता। ग्रामर में इसे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें थिंग्स नेम होता है, इनट्रांजिटिव जिसमें नहीं होता। लेकिन हम ग्रामर की बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा सिचुएशन बेस्ड इंग्लिश की बात कर रहे हैं, है ना। मैंने एक दो बार बीच में बता भी दूंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि ऐसी हवा में बात हो रही है। पता है हमें, नाम वाम सब पता है हमें, ठीक है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश बात कर रहे हैं तो रियल लाइफ में नाम जानने की जरूरत नहीं है, आप सिचुएशन समझिए, हमारे तरीके से समझिए। तो अगर किसी सेंटेंस में थिंग्स नेम है उसका विदाउट डूअर बन सकता है, अदरवाइज विदाउट डूअर नहीं बन सकता। और ये देखो, ये जो आंसर का फॉर्मेट है हमारा, जो हमारा आंसर का फॉर्मेट है डूअर टाइम वर्ड एक्शन, जो हमारा आंसर का फॉर्मेट है डूअर टाइम वर्ड एक्शन, जो हमारे आंसर का फॉर्मेट है डूअर टाइम वर्ड एक्शन। तो है ना, अगर इस फॉर्मेट में आप सेंटेंस बनाते हो तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब मैं विदाउट डूअर का सीक्वेंस लिख देता हूं, विदाउट डूअर किस फॉर्मेट से बनेगा। ओके, मैं अब लिख देता हूं कि विदाउट डूअर किस फॉर्मेट से बनेगा। Once again, just it's I'm able to I'm trying to click but it's not clicking. ओके, है ना। तो ये रहा डूअर वाला, मीन्स डूअर काम करता है तो उसका फॉर्मेट। अब मैं विदाउट डूअर का सीक्वेंस लिख दूं, भाई सीक्वेंस वाइज चलना है, मैंने पहले ही बताया था। विदाउट डूअर जो सेंटेंस बोलेंगे आप, उसका सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं। विदाउट डूअर जो सेंटेंस बोलेंगे आप, उसका सीक्वेंस। एक तो डूअर वाला सेंटेंस है, डूअर वाला बनता है हमारा डूअर टाइम और एक्शन से, है ना। डूअर टाइम और एक्शन से। और विदाउट डूअर आपका बनेगा, है ना। विदाउट डूअर का सीक्वेंस बनता है आपका, सबसे पहले आपको यूज करना है थिंग्स नेम। सबसे पहले आपको यूज करना है थिंग्स नेम। जब आप विदाउट डूअर वाला सेंटेंस बोलते हैं तो आपको सबसे पहले यूज करना है थिंग्स नेम। ओके, सबसे पहले यूज करना है थिंग्स नेम। अब आप एक चीज समझेंगे मैं क्यों कह रहा था। मैं कह रहा था कि अगर किसी सेंटेंस में थिंग्स नेम नहीं है तो उसका विदाउट डूअर नहीं बन सकता। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि भाई विदाउट डूअर में सेंटेंस स्टार्ट ही थिंग्स नेम से होता है। अब अगर किसी सेंटेंस में है ही नहीं तो कैसे बोलेगा। और मैं आशा करता हूं आप सभी समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखो क्लासेस इंटरकनेक्टेड है। कोई डायरेक्टली अगर ये क्लास देख रहा है तो मैं, ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहे, क्योंकि रहेगी। मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहली क्लास में ही कहा था, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश जो है इंटरकनेक्टेड है, चीजें जुड़ी हुई हैं। और ऐसा हो सकता है कि आज पढ़ाई गई चीजें, आज आज जो पढ़ाई गई चीजें उसमें जो डाउट रह गया वो आपको 4 या 5 दिन बाद समझ में आए, ये हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीजें काम करती हैं यहाँ। ओके, थिंग्स नेम। तो विदाउट डूअर बनाओगे, सबसे पहले आपको चाहिए थिंग्स नेम, फिर चाहिए आपको टाइम वर्ड, फिर चाहिए आपको बी, और फिर चाहिए आपको एक्शन थर्ड। ओके, फिर चाहिए आपको एक्शन थर्ड। ये है सीक्वेंस। जो विदाउट डूअर आप सेंटेंस बनाते हो, जहां आप डूअर मेंशन नहीं करते, आप बताते हो कि किस काम को किया जा रहा है, उसका फॉर्मेट होता है, उसका फॉर्मेट होता है थिंग्स नेम, टाइम वर्ड, बी, और एक्शन की थर्ड फॉर्म। और एक्शन की थर्ड फॉर्म। जो विदाउट डूअर वाला सेंटेंस होता है उसका फॉर्मेट लिखा है मैंने थिंग्स नेम, टाइम वर्ड, बी, एक्शन की थर्ड फॉर्म। और देखो विदाउट डूअर, एक तो ये सेंटेंस जो है हमारा डूअर वाला, ये क्या कहता है कि डूअर ने इस समय पर, इस समय पर ये काम किया और इस चीज के ऊपर काम हुआ, जो कि थिंग्स नेम कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, उल्टा कहेंगे, ये काम हो रहा है ना। यहां से चलता है ना, ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये काम हो रहा है इस समय पर इस चीज पर, है ना। तो इस काम को किया जा रहा है। सेंटेंस जैसे आई एम मेकिंग टी, है ना। आई एम, सेंटेंस मैंने लिखा है आई एम मेकिंग टी, जो कि एक डूअर वाला सेंटेंस है। मैं चाय बना रहा हूं, मैं इसका, मुझे इसका विदाउट डूअर बनाना है ना। आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रहा हूं, इसका मुझे विदाउट डूअर बनाना है।
देखो आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि सर ये बाय बाय भी तो लगाते हैं। आपके माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर एक्शन थर्ड फॉर्म के बाद बाय भी तो लगाते हैं कि आई एम, कि सर थिंग्स नेम टाइम वर्ड बी एक्शन थर्ड फॉर्म बाय। तो उसमें मैं भी बात करता हूँ, अभी मैं एक दो एग्जांपल दे दूं मैं फिर बताता हूँ। तो मुझे आई एम मेकिंग टी का विदाउट डूअर बनाना है। मुझे ये जो सेंटेंस है आई एम मेकिंग टी, इसका मुझे विदाउट डूअर बनाना है। तो सबसे पहले थिंग्स नेम चाहिए, तो थिंग्स नेम है टी। किसी को कोई दिक्कत? जब मैंने टी लिखा विदाउट डूअर बना, किसी को कोई दिक्कत? टी लिखा दो, नो सर। है ना भाई। थिंग्स नेम टी है, इसके ऊपर काम हो रहा है, तो सबसे पहले टी लिख दिया। अब टाइम वर्ड हो गया हमारा, थिंग्स नेम हो गया। अब मुझे टाइम वर्ड लिखना है। नाउ आई नीड टू राइट टाइम वर्ड। अब देखो, मैंने कहा कि मैं चाय बना रहा हूं और चाय बनाई जा रही है। एक कहा मैंने डूअर वाला सेंटेंस, मैं चाय बना रहा हूं, और एक मैंने कहा चाय बनाई जा रही है। दोनों में टाइम तो कॉमन ही है कि वर्क इज गोइंग ऑन की बात हो रही है, अभी इसी वक्त की बात हो रही है। मैं चाय बना रहा हूं और चाय बनाई जा रही है, टाइम तो कॉमन है। सो टी और टाइम वर्ड चाहिए तो इज, टी इज, है ना। एम है, आई है, तो आई के साथ एम, इज एम आर है तो इज एम आर, तीनों का मीनिंग होता है वर्क इज गोइंग ऑन। और वर्क इज गोइंग ऑन की बात हो रही तो टी के साथ इज यूज कर दिया मैंने। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ दो शब्दों में? नहीं ना। थिंग्स नेम लिखा मैंने टी, टाइम वर्ड में विदाउट, और थिंग्स नेम लिखा टी, टाइम वर्ड लिखा मैंने इज। अब टाइम वर्ड के जस्ट बाद एक शब्द है बी, टाइम वर्ड के जस्ट बाद एक शब्द है बी, ओके। और उस बी को जब मैं इज के बाद लिखूंगा तो वो आईएनजी में बदल जाएगा, क्योंकि आपको पता है इजेमार के बाद एक्शन की आईएनजी आती है। आपको पता है कि टाइम वर्ड है ना, टाइम वर्ड है इज, और टाइम वर्ड के जस्ट बाद एक जो वर्ड है वो है बी। अब भाई टाइम वर्ड के जस्ट बाद जो वर्ड आएगा वो अपने हिसाब से चेंज करता है। कोई भी शब्द हो तो बी है, बी की आईएनजी होगी बीइंग, सो टी इज बीइंग। और ध्यान रहे, जो भी बदलाव होते हैं एक्शन, है ना, जो भी बदलाव होते हैं एक्शन में, जो भी बदलाव होते हैं टाइम वर्ड के जस्ट बाद वाले वर्ड में बदलाव होता है। तो बी है, इजे मार के बाद जो भी बदलाव होंगे बी में होंगे। ये जो एक्शन की थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म कांस्टेंट रहेगा, इसमें इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने आपको। क्यों नहीं करने? क्योंकि भाई टाइमर के बाद ये थोड़ी आ रहा है, टाइमर के बाद ये एक्शन की थर्ड फॉर्म थोड़ी आ रहा है, टाइमर के बाद बी आ रहा है तो बी ही चेंज होगा। सो टी इज, और इज ने बी को कर दिया बींग, और फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म तो एक्शन था मेक, तो मेड। टी इज बीइंग मेड, इसका मतलब चाय बनाई जा रही है, या फिर आप कह दो चाय बन रही है। आपको जो कहना है हिंदी में कहो, लेकिन डूअर नहीं होना चाहिए, है ना। चाय बनाई जा रही, मतलब ये विदाउट डूअर का एक सेंटेंस बना, टी इज बीइंग मेड, चाय बनाई जा रही है, चाय बन रही है, ओके। और देखो, एंड ये आपन, ये वाला अपन स्पोकन इंग्लिश की बात करें, अपन सीखने की इसको यूज कैसे करना। आप ये मत सोचना कि सर बाय भी तो लगाते हैं, आप ये मत सोचना, आप ये मत लगा देना कि सर बाय मी, सर बाय मी लगाते हैं। टी इज बीइंग मेड बाय बाय मी, बाय हिम, बाय मदर। भाई ये कोई ऐसा बोलता है क्या? आपने कभी ऐसा बोला है कि चाय बनाई जा रही मेरे द्वारा, खाना बनाया जा रहा है मम्मी के द्वारा? ऐसा कोई बोलता है क्या? ऐसा थोड़ी बोलते हैं अपन। तो बाय वाय लगाने की जरूरत नहीं है कि बाय लगा दिया लास्ट में, कि टी इज बीइंग मेड बाय मदर, चाय बनाई जा रही मम्मी के द्वारा। भाई सीधे आपको बोलना है तो आप बोल दो चाय बना, सीधे बोल दो आप, माय मदर इज मेकिंग टी, मम्मी चाय बना रही। तो कोई भी बाय या कुछ नहीं लगाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो बाय बाय लगता है, वो सीधे डायरेक्टली मेरे से बात करें, मैं समझाता हूँ आपको कि क्यों नहीं लगाएगा। लेकिन आप ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं सर हमने पढ़ा है, भाई आपने उधर वाला वो ट्रांसलेशन पढ़ा होगा। लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग। तो ये रहा पहला सेंटेंस, है ना, टीज। अब मैं दूसरा एक और बनाता हूँ विदाउट डूअर। माई ब्रदर, माई ब्रदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स, माई ब्रदर इज वॉशिंग द क्लोथ्स, मेरा भाई कपड़े साफ कर रहा है, कपड़े धो रहा है। मुझे इसका विदाउट डूअर बनाना है। मेरा भाई कपड़े साफ कर रहा है, आराम से मैं एक एक शब्द लिखूंगा, आई विल राइट वन वर्ड, है ना, एक एक वर्ड, है ना। मैं एक एक वर्ड लिखूंगा, कोई, ताकि कोई भी किसी को कंफ्यूजन है, एक एक वर्ड। और मैं हर टाइम वर्ड से, देखो ये बहुत डिटेलिंग में होगा मेरे को। अभी मैं एम से, अभी मैं विदाउट डूअर एम से बता रहा हूँ। हमारे विदाउट डूअर सारे टाइमर से बनेंगे, हमने जितने टाइमर पढ़ रखे हैं, याद रहे। हमने इजेमार पढ़ा है, वॉज वर हैव हैज डू डज, सबके सबके बनेंगे, सबके विदाउट डूअर बने। अभी मैं चीजों को आसान तरीके से पहले बता दूं कि फॉर्मेट क्या है, किन सेंटेंस का विदाउट डूअर बन सकता है, किसका नहीं बन सकता है। तो माई ब्रदर इज वॉशिंग द क्लोथ, मेरा भाई कपड़े साफ कर रहा है, कपड़े धो रहा है। तो मुझे इसका विदाउट डूअर, क्या मैं इसका विदाउट डूअर बना सकता हूँ? माई ब्रदर इज वॉशिंग द क्लोथ, इसका विदाउट डूअर बना सकता हूँ? यस और नो, फिर बनाता हूँ मैं। यस सर। Yes, sir. Yes, बिल्कुल, sir. क्योंकि वॉशिंग के बाद द क्लोथ से थिंग्स नेम है।
और हमारा विदाउट वर्ड थिंग्स नेम से ही स्टार्ट होता है, सो द क्लोथ्स, द क्लोथ्स। टाइम वर्ड, किस समय की बात हो रही है, कौन सा टाइम वर्ड यूज होना चाहिए द क्लोथ्स के बाद? सर इज द क्लोथ्स प्लूरल है ना, तो आर होगा ना। उस इजेमार तीनों का मीनिंग सेम होता है। अब डिपेंड्स ऑन द डूअर कि सिंगुलर डूअर है, प्लूरल डूअर है, फर्स्ट डूअर है, सेकंड डूअर है। आपके द क्लोथ्स आर, इजेमार तीनों का मीनिंग सेम होता है, तीनों वर्क इज गोइंग ऑन की बात, द क्लोथ्स आर। फिर है ना, थिंग्स नेम हो गया मेरा, ये थिंग्स नेम हो गया मेरा, ओके, ये थिंग्स नेम हो गया। टाइम वर्ड लिख दिया मैंने, अब मुझे बी बी लिखना है। तो अगर मैं इस बी को उठा के आर के बाद लिखता हूं तो बीइंग हो जाएगा। और फिर ये एक्शन की थर्ड फॉर्म, तो एक्शन था वॉश, तो ये हो जाएगा वॉश्ड। ये थर्ड फॉर्म ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये थर्ड फॉर्म ही रहेगा, इसमें ये चेंज नहीं होने वाला। द क्लोथ्स है ना, मैं लिखूंगा द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। मैं फिर से बता दूं, कोई बाय बाय नहीं लगाएगा कि बाय उसके द्वारा, उसके ऐसा कुछ नहीं बोलता स्पोकन में, कोई ऐसा नहीं बोलता है कि काम हो रहा है उसके द्वारा, कपड़े धो रहे भाई के द्वारा, सीधे बोल दो ना माय ब्रदर इज वॉशिंग क्लोथ्स। सो विदाउट डूअर मैंने कहा द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, कपड़े धोए जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कपड़े धुल रहे हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं। एक और बनाता हूं मैं, ओके, लेट मी मेक वन मोर, ओके, लेट मी मेक वन मोर, ओके। सो सर इज चेकिंग द नोटबुक, ओके, सर इज चेकिंग द नोटबुक, इसका मुझे विदाउट डोर बनाना है। तो सबसे पहले विदाउट डोर बनेगा, थिंग्स नेम चाहिए, तो विद थिंग्स नेम है हमारा नोटबुक, नोट। है ना, द नोटबुक पूरा लिख देता हूँ, द थिंग्स नेम है नोटबुक, भाई चीज पे काम हो रहा है, नोटबुक ना, नोटबुक। टाइम है, मैं बस एक टाइम वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सब सिर्फ आपको एक बार माइंड में डालना चाहता हूँ, सीक्वेंस डालना चाहता हूँ। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं अभी बस आपके माइंड में थिंग्स नेम डालना चाहता हूँ, ओनली थिंग्स नेम, ओनली मैं जानना चाहता हूँ कि ये है सीक्वेंस। उसके बाद में अभी मैं इजे मार से ही, मैं सारे विदाउट डूअर इजे मार से ही बुलवाऊंगा, तो अभी उतना ही बनाना। और देखो कन्वर्सेशन अब और लेंदी होगा, ये कन्वर्सेशन और लेंदी होगा, क्योंकि अभी दो दो वाले भी चल रहे हैं, हमारा एक एक्शन भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, और वो होगा अभी, सुनेंगे भी हम लोग। द नोटबुक, वर्क इज गोइंग ऑन की बात है, द नोटबुक इज बीइंग और चेक्ड, नोटबुक चेक्ड, नोटबुक चेक की जा रही है ना, नोटबुक चेक होने का काम हो रहा है। आप जिस तरीके से बोलना चाहते हैं उल्टा सीधा करके बोलो, लेकिन डूअर नहीं है यहाँ पे। आप बस ये बता रहे हो कि क्या काम हो रहा है, नोटबुक है, नोटबुक चेक हो रही है ना, चेक हो रहा है नोटबुक, है ना, नोटबुक चेक होने का काम हो रहा है, नोटबुक चेक की, आप बोल दो नोटबुक चेक की जा रही है, नोटबुक चेक हो रही है, सिंपली विदाउट डूअर। एक और सेंटेंस है आई एम मेकिंग, क्या मैं इसका विदाउट डूअर बना सकता हूं? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। और एग्जांपल लेंगे अब, और एग्जांपल है ना, ये इतने हो गए, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन भी होगा तो अपन हटा देंगे, और कंफ्यूजन को कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल देता हूं, एक दो कंफ्यूजिंग एग्जांपल देता हूं, जिससे अब मैंने कहा माय मदर इज बीटिंग मी, मैंने कहा माय मदर इज बीटिंग मी, क्या इसका विदाउट डूअर बन सकता है, माय मदर इज बीटिंग मी का विदाउट डूअर बन सकता है? यस और नो? यस सर। बन सकता है। I'm being, yes sir. कौन है थिंग्स नेम, किस पे काम हो रहा है? मी पे सर। मुझ पे काम हो रहा है भाई, मैं पिट रहा हूं, मेरी मम्मी है डूअर, टाइम वर्ड है इज, बीट है एक्शन, और मी मतलब मेरे ऊपर काम हो रहा है, विदाउट डूअर बनाना है, तो सबसे पहले थिंग्स नेम लिखना है, आई एम थिंग्स नेम हूं मैं, तो आई। अगर खुद पर काम होता है तो वो मी लिखा जाता है, और हम खुद काम करते हैं तो उसे आई से बोलते हैं। अगर मैं काम कर रहा हूं तो आई से, और मुझ पे काम हो रहा है तो मी, सो आई। फिर इजेमा की बात हो रही वर्क, तो आई के साथ एम आता है, एम के बाद बीइंग आ जाएगा, और थर्ड फॉर्म हो गई बीटन, इसका मतलब मेरी पिटाई हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं, अपन बोलते हैं ना मैं पिट रहा हूं,
मैं पिटता हूँ, आई एम बीइंग बीटन। और एग्जांपल लेते हैं, अभी एक ही टाइम वर्ड लूंगा मैं, आई विल नॉट चेंज द टाइम वर्ड। मैं कहूंगा सोनू सर ने लिखा है आई बीटन इज बीइंग, ऐसा कुछ नहीं है सर, ये क्या लिख रहे हो आप, आई बीटन सीक्वेंस जाओ ना, थिंग्स नेम आपने लिखा, थिंग्स नेम आई लिखा। अब आपने, है ना, देखो सोनू सर आपने लिखा आई बीटन इज बीइंग माय, देखो थिंग्स नेम लिखा, थिंग्स नेम मेरे ऊपर काम हो रहा है तो आई लिखा आपने, है ना, आपने आई लिखा। अब उसके बाद टाइमर चाहिए, तो टाइम, है ना, टाइमर तो अभी इसी वक्त की बात हो रही है, देखो इज है तो अभी इसी वक्त की बात हो रही है, तो आई के साथ एम आएगा, एम तो एम आ गया। फिर बी का एक्शन फॉर्म, तो एम के बाद बीइंग हो गया, फिर थर्ड फॉर्म बीटन, आई एम बीइंग बीटन। सीक्वेंस के थ्रू चलिए, कुछ भी लॉजिक मत लगाइए कि कहीं भी कुछ भी उठा के रख दिया। आपको क्या बस 3-4 शब्द उठा के रखने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता हूं, वी आर डूइंग द शॉपिंग, है ना, Shopping वी I've been आर, doing. है ना। अच्छा आप लोग इसका विदाउट वर बनाइए, सभी लोग पहले नोटबुक में विदाउट वर इसका लिखेंगे, और हिंदी भी लिखना, इसका हिंदी भी लिखो और फिर बताइए मुझे। Shopping are being doing. वेट वेट, हैव यू रिटर्न? हाँ सर लिख लिए। स्पीक। द शॉप हिंदी नहीं लिखे हैं सर, सॉरी। हिंदी लिख लीजिए। शॉपिंग की जाए। यस सर। स्पीक। शॉपिंग आर बीइंग डन। शॉपिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट। किया जा रहा है। मतलब शॉपिंग आर बीइंग डन, शॉपिंग को किया जा रहा है। खरीदारी। नेक्स्ट। खरीदारी। और कोई? किया। मकारी नहीं सब लिख के बोलना भाई। शॉपिंग आर बीइंग डन, हम्म। शॉपिंग को किया जा रहा है। हम्म। Sir, may I? यस मैम। The shopping are being done. Shopping किया जा रहा है। नेक्स्ट। और कोई? बना दो इसका विदाउट वर, वी आर डूइंग द शॉपिंग। सोनू सर। Okay, sir. The shopping are being done. Okay. हिंदी। शॉपिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट। मुस्कान मैम। द शॉपिंग इज बीइंग डन सर, शॉपिंग किया जा रहा है। और कोई? हो रहा है। एनीबडी एल्स? तो शॉपिंग दा का यूज क्यों कर रहे हैं? शॉपिंग आर बीइंग डन भी तो बोल सकते हैं ना। नहीं बोलना, क्यों बोलेंगे भाई, थिंग्स नेम क्या है, थिंग्स नेम द शॉपिंग दा, लिखा द हुआ है ना आपके शॉपिंग। पास, हाँ दा शॉपिंग, ओके तो ओके। बस द शॉपिंग से स्टार्ट होगा। हम्म। और कोई? तो थिंग्स नेम है द शॉपिंग, द शॉपिंग थर्ड वर्ड सिंगुलर की कैटेगरी में जाएगा, ये प्लूरल नहीं होता, तो इज होगा, बीइंग डन, शॉपिंग हो रहा है। आर कैसे आ जाएगा? द शॉपिंग तो सिंगुलर डुअर में जाएगा ना, प्लूरल कैसे हो सकता है ये? चलो नेक्स्ट। चलिए, माई फादर इज क्लीनिंग द हाउस राइट नाउ। द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड। घर की सफाई की जा रही है। नेक्स्ट। The house is being cleaned. घर की सफाई हो रही है। नेक्स्ट। हो रही है। हो रही The house is being cleaned. घर की है। सफाई हो रही है। एनीबडी एल्स? हो रही है। The house is being cleaned.
हाँ, घर की सफाई हो रही है। Anybody द else? द हाउस इज द हाउस इज बीइंग क्लीन्ड, घर की सफाई हो रही है। बहुत बढ़िया. Who is somebody else? The house is being clean right now. घर की सफाई अभी हो रही है. बहुत बढ़िया. Who is next? द हाउस इज बीइंग क्लीन राइट नाउ। अच्छा, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं. बढ़िया, चलो समझ पा रहे हैं आप लोग. ठीक है, तो इजे मार से तो बना रहे हो, चलो और मेरे को चेंज करके देता हूँ. क्लास चल रही है। हम्म, फॉर्मेट सेम है। ठीक है. माय मदर इज गिवन मी मनी. मम्मी ने पैसे दिए मुझे. सेम। मनी हैव बीन गिवन टू मी, इसका हिंदी नहीं पता। तो पैसे गलत दिए है जा रहे सेंटेंस. हैं। क्या सर? सॉरी। इफ यू डोंट नो द हिंदी इट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग. मनी हैव बीन गिवन टू मी। पैसे, मुझे पैसे दिए जा रहे हैं। मनी हैव बीन गिवन टू मी, मुझे पैसे दिए जा रहे हैं। एनीबडी एल्स? अभी The money is being given. सर मैं आए. यस मैम. मनी इज बीइंग गिवन टू मी, मुझे पैसे दिए जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट. एनीबडी एल्स? ठीक है, तो विदाउट डर बनाते आ जाते हैं. यहां पर माय मदर हैज गिवन मी मनी. रफली देखें तो दो थिंग्स नेम है ना, एक्शन के बाद दो चीजें हैं जिसके ऊपर काम हो रही. तो हाँ ठीक है, मनी से अपन स्टार्ट कर सकते हैं. मनी को अपन थिंग्स नेम कंसिडर कर लेते हैं, है ना. मैं देखो आई से भी सेंटेंस बना सकता हूं. मैं इसको दो तरीके से बनाऊंगा. ठीक है, पहले तो चलो मनी से, है ना. सो मनी, ठीक है. थिंग्स नेम हमने लिख लिया मनी. ओके, ऑब्जेक्ट हमारा थिंग्स नेम. अब इसके बाद मुझे चाहिए टाइम वर्ड, है ना. मुझे चाहिए टाइम वर्ड. मैंने क्या कहा, मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए. माई मदर हैज, तो हैव की बात हो रही है. टाइम वर्ड है हमारे पास. आपके पास टाइम वर्ड का ऑप्शन है हैव और हैज, क्योंकि वर्क इज कंप्लीट की बात हो रही है. देख लो, हैव हैज. तो मनी के साथ हैज आना चाहिए. मनी थर्ड वर्ड सिंगुलर में जाता है. सो मनी हैज. अब हैज के बाद ये जब बी रखूंगा मैं, हैज के बाद बी आएगा तो ये बीन थर्ड. हैव हैज के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है. तो भाई बी का बीन हो जाएगा. मनी हैज बीन और एक्शन थर्ड फॉर्म गिवन टू मी. मुझे पैसे दिए गए हैं. इसका मतलब मुझे पैसे मिले हैं, है ना. मुझे पैसे, अपन बोलते भी हैं ऐसा बहुत बार, मुझे पैसे मिले हैं या दिए गए हैं. मुझे पैसे, मनी हैज बीन गिवन टू मी, ये इसका बना विदाउट डूअर. देखो इजे मार क्यों बनाओगे, मैंने जो सेंटेंस दिया वो तो वर्क इज कंप्लीट में दिया ना, तो हैव ऐसे बनेगा विदाउट डूअर. मैंने कहा मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए हैं, विदाउट डूअर मनी हैज बीन गिवन टू मी, या आई हैव बीन गिवन मनी. समझ पा रहे? कोई कुछ क्वेश्चन करना चाहे तो कर लो. पहले मैं आपसे क्वेश्चन के बाद कर लेता हूँ, फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. आई हैव बीन गिवन मनी। यस यस, सर। क्योंकि आई देखो हैव ना, बीन दो गिवन दो मनी। थिंग्स नेम है ना. गिवन के बाद आपके पास दो शब्द हैं. सर इससे दो पहले थिंग्स आपने नेम. मी का आई से बनाया था। यस, यस, तो बन सकता है बिल्कुल. दो थिंग्स नेम आप कह सकते हो ना. आई हैव बीन गिवन आप कह सकते हैं.
आई हैव बीन गिवन मनी, मनी। पैसे मिले मुझे। चलो एक है ना, और हैव ऐसे इजेमार से नहीं, देखो इजेमार वाला, मैंने इजेमार वाले सेंटेंस का विदाउट डूअर बनाने को देता तो इजेमार से बनता विदाउट डूअर। अगर मैं हैव हैस वाले सेंटेंस का विदाउट डूअर बनाने को दूं तो हैव हैस से बनेगा। ओके, तो हैव हैस से बनेगा वो। और एग्जांपल लो, है ना। और मैं देखो मैं हिंदी भी पूछूंगा, क्योंकि अगर आप हिंदी नहीं बता पाएंगे इसका मतलब आप ये नहीं बता पाएंगे कि आप किस सिचुएशन में बोलेंगे वो। इसलिए मैं हिंदी पूछ रहा हूं तो स्टार्टिंग में एक बार समझ में आ जाए चीजें, एक ही बार समझना है पूरे लाइफ टाइम के लिए। जैसे मैंने कहा था, हमें हमें बस एक बार इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ लेनी है कि बस बाद में से बोलना बोलना हो, आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ये क्या है ये क्या है, आपको पता हो कि अच्छा हाँ ये तो वो रूल है, बस बोलने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट। आ हम्म, अच्छा गाने की आवाज आ रही है क्या मेरे साइड से? चलो बढ़िया है। नो सर। इधर नो पीछे कोई सर। गाना बजा रहा है, भोजपुरी गाना बज रहा है इधर। ओके। सर हैज चेक द नोटबुक, मेक द विदाउट डूअर। द नोटबुक हैज बीन चेक्ड। हिंदी। नोटबुक नोटबुक चेक किए जा चुके हैं। ठीक है, चलेगा, बढ़िया। नेक्स्ट। द नोटबुक हैज बीन चेक्ड। हम्म। नोटबुक को चेक किया जा रहा है। नोटबुक को चेक किया जा रहा है। कि सर किया जा रहा है, और वर्क इज गोइंग ऑन की बात करोगे तो वो इजेमार वाला हो गया, वो तो इजेमार वाला हो गया ना। अगर आपको कहना है कि नोटबुक चेक किया जा रहा है तो आप कहेंगे नोटबुक इज बीइंग चेक्ड। यस लेकिन यस। आपने तो हैज से बोला, हैव ऐसे बोला, वो काम पूरा होने की बात करता है हैव हैज। नोटबुक को चेक किए गए हैं। डॉली मैम। द नोटबुक हैज बीन चेक्ड। नोटबुक चेक किया गया है। ठीक है, और कोई? The notebook has been checked. नोटबुक चेक किया गया है। और कोई? द नोटबुक हैज बीन चेक्ड। नोटबुक को चेक किया गया है। और कोई? सर हिंदी वाला राइट है या रॉन्ग है? इट्स राइट। ठीक है, तो द नोटबुक सिंगुलर है, नोटबुक्स होता तो प्लूरल होता, तो नोटबुक हैज बीन, एज हैव हैज के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म, तो बी में सारे बदलाव होने, बीन चेक्ड। ओके, मैं कह सकता हूँ नोटबुक चेक हो गया। हो चुके हैं। है ना, पूरा अप्रोप्रिएट हिंदी लिखूंगा, वो ऐसी हिंदी जिसमें ज्यादा बात होती है। और मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ भाई नोटबुक चेक हो गया, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। तो हाँ, आपको आप जिस तरीके से अप्रोप्रिएट हिंदी बोलते हैं वो। अब मैं एक और चीज ध्यान में रहे, आपको कभी भी अगर सेंटेंस में बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म दिखती है, एवरीबॉडी पे अटेंशन है, आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक्शन बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म दिखती है, आपको कभी भी सेंटेंस में बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म दिखती है, वो विदाउट डूअर है, वो विदाउट डूअर है। आपको कभी भी सेंटेंस में बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म दिखती है, कोई भी सेंटेंस, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो आंसर हो, अगर वो बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म से बना हुआ है, वो विदाउट डूअर है, उसमें डूअर ने काम नहीं किया। आपने बताया किस काम को किया गया, वो विदाउट, ध्यान रखना, विदाउट डूअर की पहचान होती है बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म, विदाउट डूअर की पहचान होती है बी एक्शन की थर्ड फॉर्म, ध्यान रहे। ठीक है, तो द नोटबुक हैज बीन चेक, नोटबुक चेक हो गया। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हैव हैज से सर, यस सर। आई हैव ए क्वेश्चन। आस्क। I have already is at action or
No, no, not. it's not. देखो, if you think already is an action, so tell me the ing of already. Sir, as per answer format, doer, time or action. No, no, it is. See, sometimes we use the different words to tell the time and frequency. जैसे टाइम यूज करने के लिए फ्रीक्वेंसी बीच अपन समटाइम्स, ऑलरेडी, ऑफन यूज करते हैं उस तरीके से, तो ये टाइम वर्ड नहीं है। ऑलरेडी मतलब बस एक टाइम बताने के लिए, टाइम दर्शाने के लिए वर्ड है, तो ये एक्शन नहीं है। ये अगर ये एक्शन होगा तो इसकी आईएनजी भी लग जाएगी, लगा दो, नहीं लग पाएगी तो एक्शन नहीं है। Okay, sir, got it. कपड़े पहले ही साफ हो गए हैं, पहले ही मैंने कपड़े पहले ही धो दिए, पहले ही साफ कर दिए। द क्लॉथ हैज बीन वॉश्ड। कपड़े धुल चुके हैं। ओके, एंड The cloth has been washed already. कपड़े पहले ही धुल चुके हैं। और कोई? हेलो सर। यस सर। द क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। और कोई? द क्लोथ हैज बीन वॉश और और कोई? The cloth has been already washed. और कोई? The clothes have been already washed. ओके, तो हमारा थिंग्स नेम है द क्लोथ्स। थिंग्स नेम है द क्लोथ्स। द क्लोथ्स प्लूरल की कैटेगरी में जाता है, द क्लोथ्स हैव। और क्योंकि एक शब्द यूज कर रहे हैं हैव के बाद एक शब्द ऑलरेडी, तो उसको टाइम वर्ड के बाद ही बोलो, इसको टाइम वर्ड के बाद ही यूज कीजिए। द क्लोथ्स हैव ऑलरेडी बीन वॉश्ड। कपड़े पहले ही साफ कर दिए गए हैं, है ना, कपड़े पहले ही साफ हो गए हैं, है ना, या धो दिए गए हैं। द क्लोज ऑलरेडी शब्द को ऐसे बीच बीच में कुछ चीजें रहेंगी जिसपे अपन डिस्कशन करते वक्त ही बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए सेपरेट क्लास नहीं हो पाएगी। जैसे ऑलरेडी है तो उसको टाइम वर्ड के बाद ही रखिए, एंड में या स्टार्टिंग में मत बोलना। ऐसा मत बोलना कि ऑलरेडी आई हैव वॉश्ड, आप ऐसा ऐसा मत कहना ऑलरेडी आई हैव डन द वर्क या आई हैव डन द वर्क ऑलरेडी। इसको टाइम वर्ड के बाद ही रखो, आई हैव ऑलरेडी डन द वर्क। उसी तरीके से जैसे आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड द क्लोथ्स, और इसी का विदाउट वर्ड, द क्लोथ्स हैव ऑलरेडी बीन वॉश्ड। द क्लोथ्स हैव ऑलरेडी बीन वॉश्ड। ओके, तो ये इसका बन गया विदाउट वर्ड। हिंदी लिख देता हूं ताकि अपन डिफरेंशिएट करते रहे। कपड़े पहले ही साफ कर दिए गए हैं। ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं। देखो, अभी तक हमने दो टाइम वर्ड से विदाउट डूअर बनाया है, इजेमार से है। वैसे मैं सभी के एग्जांपल दूंगा, है ना। अभी तो मैं, अभी ज्यादा नहीं, दो से। डूडस और वॉजवर्ड में थोड़ा दिक्कत होता है, तो वो मैं अच्छे से, उसके लिए मेरे को एक क्लास चाहिए, तो कल वाली क्लास रहेगी। आज, है ना, 17 हो गया है जैसा मैंने कहा था। चलो मैं आगे आगे खैर बताता हूँ, अभी पहले एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए, आई हैव डन द वर्क, मैंने काम पूरा कर दिया, विदाउट डूअर। The work has been done. काम पूरा कर दिया गया है। बढ़िया, कूल, नाइस। एनीबॉडी एल्स?
The work has been done. काम पूरा हो गया है. बढ़िया, करेक्ट। नेक्स्ट। The work has been done. काम पूरा कर दिया गया है। नेक्स्ट। द वर्क हैज बीन डन, काम पूरा कर दिया गया है। काम पूरा कर दिया गया है, काम पूरा हो गया है, सब दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। बस काम हो गया है पूरा। काम हो गया है पूरा। काफी बार ऐसा बोलते भी है ना हम कि भाई क्या काम का क्या हुआ, हुआ काम, अरे हो गया ना सर, काम हो गया पूरा। द वर्क हैज बीन डन। द वर्क हैज बीन डन। और कोई? तो आप कहेंगे द वर्क हैज बीन डन। तो याद रहे विदाउट डूअर, याद रहे विदाउट डूअर की पहचान होती है, विदाउट डूअर की पहचान होती है बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म। विदाउट डूअर की पहचान होती है बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म। हमें इन चीजों को स्पोकन में भी उतारना है, स्पोकन में भी बोलना सीखना है। हम लोग फर्स्ट, देखो अभी तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब अभी अभी तो हमें फर्स्ट फॉर्मेट पे ही कमांड पानी है, क्योंकि देखो आप वही चीजें नहीं बोल पाते जो हम फर्स्ट फॉर्मेट आपको कन्वर्ट कराते। देखो ना, एक एक हम एक एक एक्शन से कितने कितने लोग आगे बढ़ पाते हैं, एक एक्शन से कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं। सो हमें इन चीजों पे भी, और ध्यान रखना मेरी बात को, देखो ना लिख के एकदम, मैं बता रहा हूं, आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। अगर एक बार आप सही सेंटेंस, आप मतलब जब आप हर बार सही सेंटेंस बोलोगे, सही हर बार सही क्वेश्चन बोलोगे, सही सीक्वेंस, सही आंसर बोलोगे, तब आप देखोगे कि एक्यूरेसी किस लेवल पे जाएगी। हम बात करते हैं एक्यूरेसी की कि गलतियां होती है, इसीलिए गलतियां हो रही कि हम एक सेंटेंस को सही नहीं बोल पाते। हम सोचते हैं कि हमें बहुत ज्यादा कुछ बोलना है, बहुत ज्यादा एडवांस बोलना है, लेकिन हम उस एक सेंटेंस पे फोकस नहीं करते, थोड़ा ठहर जाते हैं, थोड़ा आराम से। एक बार है ना, कम शब्दों से स्टार्ट करेंगे, कम बोलेंगे, फ्लुएंसी लाएंगे, एक्यूरेसी लाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे, तभी सही रहेगा। और जो भी विदाउट डूअर आज हमने आपको करवाया है, इस पे कॉन्वर्सेशन होगा। कल की क्लास भी विदाउट डूअर पे होगी, क्योंकि कल मैं आपको डू डस से विदाउट डूअर पढ़ाऊंगा, डिड से विदाउट डूअर, और वॉज वर्ड से, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने आपको डू डस से विदाउट डूअर नहीं बनवाया, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। आज हल्का सा बेस बनवाना था, है ना, तो इसके लिए ये था आज का क्लास। एंड रिमेंबर, ओके, है ना, दिस वाज टुडेज क्लास। Now the batch started, है ना, let me tell you when did we start the batch. The batch started in January on 19th, है ना, 19th of January we started the batch. Okay, on 19th January we started the batch, and I told you in the starting that the duration of the batch is 2 months, है ना, 2 months, and within 2 months we need to improve, है ना, as much as we can. 1 month is going to be done. Okay, we are going to complete 1 month after 2 days, and after 2 days, like by 19th February, 2 months will 1 month will be completed. And as I said, that 1 month we will teach you, I'll teach you everything, the sequences, the formats, whatever is important, whatever is most important, I will teach in 1 month. I told you that in 1 month I will teach whatever is important for us, the most important thing, the most important rules of spoken, and that I will complete it. That I will complete. Third doer is done. Third format is done. Tomorrow I'll teach. Tomorrow I will teach third format, and day after tomorrow I will teach fourth format, and then things will be done. After that, only conversation will be going. Only conversation will be going on. So right now, what is happening right now? There is 1 hour of class, and then 1 hour of conversation is there. But after 19th February, there will be 2 hours of conversation. Daily you come, daily will make you converse. And if I feel that I need to teach something, which obviously I'll feel, so it will go to the extra class. I will give you the extra classes, and then I will teach. But 2 hours conversation will be fixed. For 2 hours, we'll make you converse only. Like you'll have to do debate, you'll have to do GD, you'll have to record the video and share to the group. You'll have to do the role play. And please, it will be really important. You really need to do the hard work.
You guys, sometimes you guy can do the work. You people can do the work. You know that. You know that you can speak. You know that you can record the video, but still you just procrastinate the work, and that's why we don't get the result. So there's one request from my side: don't stop yourself. Keep learning. Keep speaking. You may think that I will do the work tomorrow, I will record the video after some time, I will complete the task after some time, but believe me, it's not gonna happen. Time will be wasted. So work on that. And I, like, from my side, it will be full conversation, full. If I feel that we need to converse extra, we will obviously converse it. That is the thing. So remember, remember 2 hours of conversation from 19th or from 20th February. Right now, today, you guys have to do one role play, and everybody have to do the role play. I am giving you the situation. Shubham sir will listen to you. The situation is that there is one guy, he lives in a hostel, and he sees that in front of the hostel, there's a wedding ceremony is going on. Okay, wedding ceremony is going on. Suppose I am living in a hostel, and in front of my hostel there's a park, there's a wedding area, there's wedding going on, and I feel that today I will not make food. Today I will go to the ceremony, but I don't have the invitation card. Okay, but still I will wear good clothes and I will go without invitation. I will start eating it. But in the wedding, the person who has organized the wedding, he sees me, he catches me that I have come without invitation. He will come to me and then he will ask, do you have the invitation? Please, I want to see the invitation. I will say, Are, sir, I don't have the invitation. Sorry for that. So that is a situation. He has caught you eating food in wedding ceremony and you have come without invitation, and then you need to handle the situation. Between two people, this role play will be there. You guys will do the role play. I am deciding the team and Shubham sir will listen to you one by one. Have you guys understood what is the role play topic, role play situation, or shall I repeat? Shall I repeat that? Okay, two people, two characters, one person is going to the wedding without invitation and he will start eating, and the other guy, he's a main owner, like he has organized the wedding and he will catch the person who has come without invitation, and both of them will start arguing. Owner will say that you have eaten food without invitation, you need to pay the money, you just give me the money or you just come and wash the dishes. भाई पैसे तो नहीं तो चल बर्तन साफ करो मेरे साथ, ये बोलेगा ओनर, और बाकी दो वो जो बिना इनविटेशन है वो हैंडल करेगा. लेट मी फिक्स द टीम. Sir, it likes Three Idiot, Ranchor and Virus. या वी कैन से दैट, है ना. 3 इडियट्स, यू गाइस हैव सीन 3 इडियट्स, है ना. उससे वो तीनों घुस जाते हैं ना, तो उसी तरीके का है कुछ. ओके, नाउ लेट मी डिसाइड द टीम. Saurabh sir will go to the wedding ceremony without invitation, and in against Pooja ma'am will be there. Pooja ma'am will be organizing the wedding and she will catch you. Okay, so that's what you need to handle the situation. Saurabh sir versus Pooja ma'am. Saurabh sir will eat without invitation and Pooja ma'am will catch. Then Dolly ma'am is there. Dolly ma'am will go to the wedding and she is eating without invitation, and Ritesh sir is there and Ritesh sir will catch her without invitation. Okay, Ritesh sir, Dolly ma'am versus Ritesh sir. Dolly ma'am, you are eating, you have attended the party without invitation, and Ritesh sir will be there, he is organizing that. Okay, Okay, sir. then Aslam sir is there. Aslam sir has gone to the wedding without invitation, and Aditya sir is there, and like Aditya sir is there and he is organizing the in one, है ना, he is organizing the wedding. Okay, Aditya sir, Aslam sir, Yes, sir. and Sonu sir, you have also gone to the wedding without invitation. Shubham sir, are you there? Yes, sir, I'm here. Okay, so Sonu sir Yes, will sir, I'm be, here. है ना, Sonu sir will be alone after when everybody is done. So give him one partner so that he can also speak. Sonu sir will also go to the party and he will join that without invitation. Okay, that's what we need to do. So do it, start it. Hello. Keep doing it.
and be ready for the conversation. Conversations Hello, sir. that will be really. Yeah, Sonu sir. Hello, sir. Whatever read this class, kindly save the notes. Okay. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay. Okay, Subham sir. So make them converts, enjoy them, and we'll Okay, meet sir. tomorrow. Good evening,